इंडियन नाम भी बहुत विचित्र संयोग है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो अंग्रेजों ने बनाए थे। आप मेरे को बस पौने घंटे बाकी इंडियन मुजाहिदीन भी नाम लोग रखते हैं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी रखते हैं जो बैन हो गया। हम मोदी साहब को सदन में आके मणिपुर पे आप आके स्थिति पे बोलिए, हम इंसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो अपने पार्टी में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। Mr. Modi and the BJP, maybe for the first time since 2014, they do not have an answer. Instead of going and giving all this gyan outside Parliament, Mr. Modi, this is Parliament. Come here. We are waiting for the last 4 days for you to speak on Manipur. Come and speak. Your choice. Lok Sabha, Rajya Sabha. We'll welcome you. Open the debate. We know you're on the back foot after the Patna summit, after the Bengaluru summit. India. जीतेगा भारत। Namaste, Jai Hind and welcome to this edition of The Right Stand. I'm Anand Narsimhan. The Manipur storm continued to blow in Parliament, seeing disruptions, dharna and of course a lot of adjournments. It was the fourth day in Parliament, ladies and gentlemen, that there was not much business that was transacted, with the opposition firm that Prime Minister Narendra Modi's statement should open the debate, and they want nothing less than the Prime Minister, or no one less than the Prime Minister, to speak about it. They want all other business to be suspended too. The government, meanwhile, making its stand very, very clear that the NDA is ready for a debate, but under Rule 177 or 176, that means a 2.5-hour debate, and the Union Home Minister will deliver the statement. And they say that the opposition seems to be running away from a debate actually. Now, as the Manipur issue continues to keep Parliament on the boil, the Prime Minister, while addressing the BJP's parliamentary party meet, launched an unsparing attack on the opposition alliance, whose acronym equals to I.N.D.I.A, calling this alliance directionless. The Prime Minister said there are entities in the past like A.O. Hume when he founded the Indian National Congress, or the East India Company, or on the current day the Popular Front of India, or in the recent past the Indian Mujahideen, who all appropriated and tried to use the name India, but do they really do service to the country, or did they really stand for it? That's the big question. He further continued to assert that people cannot be misled merely by the use of a smart acronym for an alliance that mirrors the country's name. With this, the larger question is, has the Prime Minister deflated, diluted, defanged the opposition's attempt to try and appropriate the country's name with the acronym for their alliance, which the BJP has largely called old wine in a new bottle. चेहरा मुखौटा बदलने से असली चेहरा नहीं बदल जाता. That's the argument that the BJP has made. Let's go straight into this face-off. Sanju Verma, national spokesperson of the BJP, is with us, and Mahua Maji, Rajya Sabha MP of the Jharkhand Mukti Morcha, also with us. Namaste and Jai Hind, ladies. Thank you very, very much. Mahua Maji ji, how would you see the Prime Minister's explanation or interpretation of your alliance? एक्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंडिया नाम को लेकर कहा है कि इन्होंने क्यों इंडिया नाम लिया, और उसके साथ उन्होंने मुजाहिदीन और इन चीज़ों को जोड़ा है। लेकिन आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी वो विदेशों में जाकर कहते हैं, उनके यहाँ स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, हर चीज़ में वो इंडिया लगा रहे हैं, हर स्कीम में लगा रहे हैं। तो फिर उनको इंडिया नाम से परहेज क्यों है? और हम सभी जानते हैं कि इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। तो ये अगर हमारा स्लोगन भी है कि टीम इंडिया जीतेगा भारत, उसमें भारत भी है, इंडिया भी है। तो आखिर जब टीम इंडिया ने इंडिया नाम को अपनाया तो उन्हें
उसको लेकर इतना ऑब्जेक्शन क्यों आ रहा है? पर हमें ये यही आपका समझ में नहीं आ रहा है, और उस पर वो बयान कैसे दे सकते हैं? I.N.D.I.A इसका फुल फॉर्म बता देंगे जरा मैम? हाँ बिल्कुल, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, वो भी आपको पढ़ के बताना पड़ ये रहा है इसका फुल फॉर्म। बिल्कुल, मैं इसलिए पढ़ के बता रही हूँ कि कहीं स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए, और अभी अभी ये बना है तो वो जबान पे चढ़ने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, एक नहीं, शब्द इधर उधर हो जाए वहां तो पर आप भी तुरंत आपने पढ़ के कहेंगे भी कि शायद आपने गलत गलती की है बोल मैम दिया। कि वो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है मैम, वो मैं बिना पढ़े आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ के अच्छा, भी हो गलत सकता बोल है दिया। क्योंकि तो आपके लाइट से, आपके यहाँ कैमरे का जो लाइट लगा हुआ है ना, वो इतना चमक रहा है कि मैं ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ, इसके चलते हो सकता है नहीं, slip पर of आपने tongue। स्टार्टअप हाँ, जी, इंडिया, बताइए। खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया वो सब तो सही पढ़ दिया था, और फिर इंडियन आर्मी वो सब तो आपने, वो भी आपने नीचे देख के ही पढ़ा था, पर यहाँ आप जरा चूक ठीक गई है, जो आपने एक वर्ड, हाँ ठीक है, एक वर्ड, यही तो शायद मैं ये है मैं इसको कि बड़ा स्मार्टली देखिए, देखिए। है एक शब्द आगे पीछे हो सकता है। नहीं, आप हो भी सकता है, गलतियां हर किसी से होती हैं, और हर गलती सबको, और माफ करने यहाँ वाला पे लाइट गलती इतनी करने अधिक वाले है से बड़ा आपके होता है, मैं वो भी कैमरे मानता की हूँ कि वो मैम, कई बार चमक रहा है। पर मेरा प्रश्न जी। आपके यहाँ मुद्दे पर बात कीजिए नहीं, ना, मुद्दे एक पर शब्द यही पे तो बात मत मुद्दा है कीजिए, मैम आपको भी पता है इसका कि full form एक क्या है। नाम को और अडॉप्ट कर सबसे लेने बड़ी से बात है, नहीं, आप चतुराई तो आपने दिखाई कि आपने कैसे किस तरह से ऐसा एक नाम अपना सोच ले जिसका कि फिर शॉर्ट फॉर्म जो है वो देश के नाम के बराबर हो जाता है, ये तो आपकी चतुराई है। लेकिन उससे क्या हाँ, ये होना भी चाहिए। उससे चतुराई क्या तो हर तरफ हो आपका रही है ना। स्वभाव स्वरूप बदल जाता भाजपा है, हमेशा उससे क्या आपका स्वभाव स्वरूप बदल जाता अच्छा, है, ये प्रश्न एक उठता मिनट, है। मैं यहाँ स्वभाव स्वरूप से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किसके स्वभाव स्वरूप की बात करते हैं? अगर विपक्ष जिसको कहती है टीम इंडिया कहा जा रहा है, उस विपक्ष का अगर स्वभाव और स्वरूप सही नहीं है तो महाराष्ट्र में क्या हो गया, जिनको आपने मैंने 3 कब दिन कहा पहले कि आपका कहा स्वभाव माननीय स्वरूप प्रधानमंत्री सही नहीं जी है ने मैम, कि मैं वो बस भ्रष्टाचारी है, फिर आप उनको अपने यहाँ महुआ जी, मंत्री बना लेते हैं। नहीं, महुआ जी, आप दूसरे राज्यों में जाते महुआ हैं, जी, अभी आप जैसे- मेरे प्रश्न को तोड़िए मरोड़िए मत, मैंने बस ये ही पूछा, मैंने ये नहीं कहा कि आपका नहीं, स्वभाव मैं तोड़ स्वरूप मरोड़ गलत नहीं है रही या हूँ, सही मैं है। आप ही की बात को मैंने बस सही आपसे ढंग ये से कह पूछा रही हूँ। कि आपने नाम स्वभाव बदलने से स्वरूप क्या कहा, आपका तो स्वभाव स्वरूप बदल जाता, मैंने बस यही पूछा, मैंने ये नहीं कहा कि आपका स्वभाव सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपका मेरी कोई जगह भी नहीं है कि intention मैं तो कहूँ, यही मैं था बस कि ये जो पूछ रहा हूँ विपक्षी लोग कि हैं, क्या वो निश्चित नाम रूप से- बदलने से स्वभाव स्वरूप बदल जाता है, मैंने बस ये पूछा, इसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं, बोल सकते। वो तो नहीं बदलता है, लेकिन नहीं बदलता है ना। हाँ, अगर ऐसा है तो फिर आप एनडीए ने हर चीज में भारत का तो- नाम इस्तेमाल किया है, हर चीज में आप शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, सब चीज में आपने इंडिया किया। लेकिन तो फिर जो इसमें आर्ग्यूमेंट इंडिया आप दे अगर रही हैं, मैं बस एक छोटा सा आपके सामने सबमिशन रखना चाहता हूं। उन्होंने किसी पूरे फुल फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म लगाया नहीं, उन्होंने एक देश का नाम वहां पर लगाया है, जो देश का नाम इंडिया है, देश का नाम भारत है। B.H.A.R.A.T नहीं है कि उसकी पूरी व्याख्या लंबी होकर, या I.N.D.I.A नहीं है जिसकी उसकी पूरी व्याख्या बदलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बन जाता है। देश का नाम रखा है, अगर अच्छा, आपने मैं इसमें कुछ कहना देश या भारत का, चाहूंगी तो कि ये आपका, जिन्होंने ये भारत मेरा के स्वतंत्रता आंदोलन में जी 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 बोलिए। जो लोग आ भाजपा रहा में हूं, आज संजू जो जी, लोग आ रहा शामिल हैं, उनका आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नेगेटिव भूमिका निभाई। आरएसएस वालों ने अपने कार्यालय में झंडे को लेकर क्या किया, भारत के झंडे को लेकर, ये सबको पता है। और वो लोग अगर अपना नाम मैंने अपने हर चीज में इंडिया को डाल सकते हैं, भारत को डाल सकते हैं, तो क्यों नहीं टीम इंडिया इसको कर सकती है? मैं आपका उनके देखिए, लिए वो भी तो अपना रहे हैं ना, फिर महुआ माजी स्वतंत्र जी, भारत की जो फिर लड़ाई महुआ थी, माजी जी, आपने उसमें अपना किन्होंने तर्क भूमिका रखा है। निभाई मेरा है, बस किसी प्रश्न से ये छिपा है नहीं कि उस वक्त उन्होंने भारत देश का नाम अपने वहां रखा था, किसी अलायंस के शॉर्ट फॉर्म का नाम कभी कहीं रखा नहीं गया। ये बहुत बेसिक फर्क है। दूसरी बात, आरएसएस के कार्यालय में जो भारत की स्वतंत्रता से पहले जो झंडा अपनाया गया था, उस झंडे को भी आरएसएस के कार्यालय में फहराया गया है। तो ये व्याख्या भी इतिहास की अगर आप बात कहें तो वो भी अलग है। और बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स हैं जिसका आप तर्क दे सकते हैं, जो मैं तथ्य के साथ आपके सामने रख सकता हूं, पर उसके लिए आज अभी इस डिबेट में समय नहीं है। अब बीजेपी के ऊपर प्रश्न है, लेट्स ट्राई एंड आस्क द बीजेपी। संजू वर्मा जी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। संजू वर्मा जी, समवेयर दिस इंडिया इज हर्टिंग यू, इजंट इट?
The BJP parliamentary party meet was for the Prime Minister to assure the MPs. Imagine Ravi Shankar Prasad ji coming out and saying, अब हमें विश्वास हो गया है कि हम जीत सकते हैं. So clearly the MPs were rattled as to how to counter this India narrative. आनंद जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आई जस्ट वांट टू, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई. Thank you so much for brilliantly exposing the JMM panelist who does not even know the full form of what I.N.D.I.A stands for. Thank you for correcting her. But एक कहावत है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है. And the reason I quote these lines is that a debilitated and an electorally vanquished opposition is aware that it does not stand a chance in 2024. And the reason I say this with a lot of responsibility and certainly not with any iota of overconfidence is because, Anand ji, you know very well, Delhi ka rasta Lucknow se hote hue aata hai. And if you do not win substantially out of the 80 Lok Sabha seats which Uttar Pradesh sends to the parliament, then you have very little chance of being a formidable force in the national scheme of things. In 2014, BJP got 73 out of 80 seats in Lok Sabha from Uttar Pradesh. Come 2019, we got 62 seats. The tally reduced, but 62 out of 80 is a magnificent score nonetheless. And I want to ask the opposition, who is the fulcrum of your alliance today? The fulcrum is the Congress party because it's the single largest party with 52 odd seats in the Lok Sabha. And what was the Congress's score from Uttar Pradesh in Lok Sabha 2014? Congress scored a piddly 2 seats. Come 2019, from Uttar Pradesh, Rahul Gandhi was booted out of Amethi and the Congress scored just 1 seat from Lok Sabha in Uttar Pradesh in 2019. My limited point is this: if you do not win the big states like Uttar Pradesh or Maharashtra, which sends 48 MPs to the Lok Sabha, for instance, then you have a very, very thin or flimsy chance of being a serious contender. Forget even the prime ministerial post, you are not even a serious contender in the larger equation. But I have this to say. Now let's come to I.N.D.I.A. Anand ji, I will ask you with a lot of humility, if Sanju Verma changes her name to Suhana Verma, Sanjukta Verma, yeah, Sarmishtha Verma, my basic DNA, my basic way of thinking, my basic style of articulation, my basic values, they do not change. If Anand Narasimhan changes his name from Anand Narasimhan to Agastya Narasimhan or to Abhishek Narasimhan or to Arindam Narasimhan, or if Mahua changes her name to Mallika or Got it. Got the something point. else, her basic DNA, her basic characterization, or Anand Narasimhan's basic values do not change with a change in name. That is my limited point, but I will just end by saying this. Ji. When you go into the hustings in 2024, and it's going to be battle royale, I think let's be very clear that where the Congress-led alliance, suffers a lot is the fact that it does not score highly on the R factor. The R factor is the reliability factor. Be it the H.D. Devegowda government, be it the I.K. Gujral government, or be it the Chandrasekhar government. Wherever there was a non-Congress prime minister in the last many decades, that alliance never completed its full term because from under the feet of that alliance, the rug was taken out by a selfish and greedy Congress party, and not even getting into the fact that VP Singh and Rajiv Gandhi had a massive fallout. आपने बहुत कुछ ठीक देखिए, आपने बहुत सारे तर्क दिए संजू जी, पर मैं एक की बात कहूंगा, मैंने जो बेसिक सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया कि थोड़ी देर के लिए तो आप भी चौंक गए कि यार ये इंडिया वाला नैरेटिव इसको काउंटर कैसे। मैंने कहा आपका मतलब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं कि भाई इसको काउंटर कैसे करें, इसका जवाब क्या दे, क्योंकि हर तुक में हर तर्क में ये इंडिया घुसा देंगे। अगर आप इंडिया को आप कुछ कहोगे तो अरे देखो देश को बोल दिया,
So this is their smart wordplay that you have to give this alliance, this committee of contradictions, which certain people called it, because they are all full of contradictions, this entire group. But they have come up with something which actually allows them to have a certain amount of wordplay and on the narrative. महुआ जी, आप कुछ कह रही थी जी? हाँ, मैं दो बातें कहना चाहूंगी कि अभी नाम को लेकर हमारी विद्वान वक्ता ने कुछ कहा था कि नाम बदल देने से उसका स्वरूप नहीं बदल जाता। बात तो बिल्कुल सही है। फिर दिल्ली की तमाम सड़कों के नाम क्यों बदले जा रहे हैं भाजपा सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा? कई राज्यों में नाम बदल दिए गए हैं, तो क्या नाम बदल देने से वो सड़क भी बदल जाएगी या दिल्ली बदल जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने कहा कि गठबंधन की बात कही, कांग्रेस जिनके साथ अलायंस किए हैं ये वो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी जब बेंगलोर में टीम इंडिया ने जो अपना गठबंधन जो किया, कई पार्टीज उसमें शामिल हुई, सेम डेट में दिल्ली में जो एक भाजपा की तरफ से आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें ऐसे छोटे छोटे पार्टियों को शामिल किया गया। कई पार्टियों के पास तो एक भी एमएलए या एमपी तक नहीं है, उनको आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। जिन्होंने आपको पानी पी कर गालियां दी, जिन्होंने आपको कोसा, हमारे झारखंड में भी हमारे ऐसे एक जेवीएम पार्टी से है बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने लगातार भाजपा को गालियां दी, अब वो वहां के प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं भाजपा में आकर। तो इस तरह से आप जब उनको अपने में फिर शामिल क्यों करते हैं? आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को दोष दे रहे हैं, टीम इंडिया को दोष दे रहे हैं, तो वही चीज आप क्यों उसकी नकल कर रहे हैं? मेरा सवाल बस इतना ही था। जी संजू जी, नाम बदलने से अगर स्वरूप नहीं बदलता तो सड़कों के और शहरों के नाम क्यों बदल रही हैं? पहले तो वहां से शुरू कीजिए। ठीक है, तो जैसा महुआ जी ने कहा, यदि इनका नाम मल्लिका, मिताली, मौसमी या माया हो जाए तो इनका बेसिक स्वरूप या बेसिक डीएनए नहीं बदलेगा। वो बात तो मैंने कह दी आपके इंट्रोडक्शन में। अभी मेन चीज, अभी मैडम मैंने आपको टोका नहीं था, अभी धैर्य से मेरी बात सुनिए। अभी आपकी बारी बोलने की नहीं, सुनने की है। मैंने आपको सुना ध्यान से, थैंक यू। अभी बात करते हैं, when we change the name of 7 Racecourse Road to 7 लोक कल्याण मार्ग, ये इसलिए किया गया because where the Prime Minister resides, he stands as an epitome for the welfare of the people. 7 Racecourse Road का मतलब क्या है? 7 लोक कल्याण मार्ग का तो बहुत ही अच्छा सारांश निकलता है कि भाई ये जनहित के लिए यहाँ प्रधानमंत्री का निवास है। Now let us talk about राजपथ। राजपथ has a colonial vestige, उसको हमने चेंज करके बनाया कर्तव्य पथ। और यदि कोई कहता है कि कर्तव्य पथ की जगह हमको राजपथ रखना चाहिए, I will say that stinks of a colonial hangover। अभी तीसरी बात करते हैं, जब रिपब्लिक डे परेड होती है तो कई दशकों तक स्कॉटिश जो गायक हैं और लिरिसिस्ट हैं, उनका अबाइड बाय मी हिम चलाया जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो अच्छी धुन है अपनी जगह, पर यदि हम ए मेरे वतन के लोगों की धुन चलाएं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा लता मंगेशकर की? तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या दिक्कत है आपको? मुझे तो किसी भी दिन ए मेरे वतन के लोगों इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ज्यादा अच्छी लगती है। आप प्लीज एक मिनट अभी बात करते हैं इलाहाबाद की। इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ प्रयागराज। तो आप हमारी दशकों नहीं सैकड़ों पुरानी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इसका नाम प्रयागराज ही होना चाहिए था। करेक्टिंग अ हिस्टोरिकल रॉन्ग इज नॉट द सेम थिंग एज नेमिंग एन एंटी इंडिया, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी इंक्लूसिव अलायंस एज I.N.D.I.A। Okay. मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, वेरी जस्ट गिव मी 20 सेकेंड्स। आपने यहाँ कहा कि कई अलायंस पार्टनर्स जिनकी हम पहले निंदा करते थे, आज हम उनको अपने पास लेकर आए हैं। तो आई विल से दिस, 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले का अधीर रंजन चौधरी, जो कि वेस्ट बंगाल से लोकसभा के सांसद हैं, व्हाट डिड ही से? उन्होंने ममता बनर्जी की धज्जियां उड़ा दी कि लॉ एंड ऑर्डर, न्याय प्रणाली नाम की चीज नहीं मौजूद है वेस्ट बंगाल में। बट राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को बेंगलुरु में ऑपोजिशन मीट के दौरान जादू की झप्पी दी थी। यही राहुल गांधी नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते थे जब नीतीश कुमार बीजेपी के खेमे में थे। जब से नीतीश कुमार अलायंस के खेमे में, ऑपोजिशन के खेमे में आ गए, राहुल गांधी और नीतीश कुमार एक दूसरे को जादू की झप्पी देने लगे। तो जब आप ममता बनर्जी को जादू की झप्पी दे सकते हैं, आपके कांग्रेस के जो अलायंस लीडर प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में कहते हैं कि
हमको आम आदमी पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, बट कांग्रेस राहुल गांधी के तहत अरविंद केजरीवाल को अलायंस मीट के दौरान बेंगलुरु में जादू की झप्पी देते हैं। बीजेपी में मुझे बताया कि क्या रीजनल पार्टनर्स और नेशनल अलायंस पार्टनर्स के बीच में डिवीजन पोलैरिटी है? नहीं। आपका तो बंगाल का नेता कुछ और बोल रहा है और नेशनल लेवल पर उसी पार्टी का नेता कुछ अलग जी। आलाप रहा अच्छा है। प्लीज यील्ड संजू जी, महुआ जी। हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात, आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे विदुषी वक्ता ने जो कुछ भी कहा, मैं सहमत हूँ कि नाम उन्होंने बदला तो वो बहुत अच्छे नामों को चुना गया। तो हमें भी तो बोलने का मौका दीजिए कि इंडिया जो है उसमें अच्छे वर्ड्स है, डेवलपमेंट, विकास। अगर कोई पार्टी विकास की बात करे तो वो कहाँ से बुरी हो गई? अगर नेशनल कहता है उसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, तो इनमें कौन सा वर्ड बुरा है? अगर इसको लाया गया है तो मैंने क्या तो पहले दिन ही महुआ जी, दूसरी बात की जो महुआ जी, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, मैंने तो पहले दिन ही कहा कि आप भी अब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास बोल रही हैं, पर इंग्लिश में बोल रही हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का पर्याय हिंदी में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास है, जो प्रधानमंत्री जी 5 साल से बोल रहे हैं, 6 साल से बोल रहे हैं। तो इसमें तो कोई ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या सही मायने में आपकी अलायंस जिस तरह से आई है, ये मौका परस्ती है, ये भारत के हित के लिए बनी है कि स्वहित के लिए बनी है? तो यही तो प्रश्न है। प्रधानमंत्री जी का आर्गुमेंट बनी है, इसमें इतनी प्रधानमंत्री जी का आर्गुमेंट आपसे, प्रधानमंत्री जी का तथ्य पॉइंट क्या है कि सिर्फ नाम को अप्रोप्रिएट कर लेने से क्या आपके काम में फर्क आ गया या आपका काम बोलता है? ये उनका आर्गुमेंट है। आप इस पर क्या कहेंगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, आज जो देश के सामने जो काम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किस तरह से जनता के पैसे, एलआईसी के पैसे, उसे आप चंद बिजनेसमैन के हाथों में दे रहे हैं उनको, वो विदेश भाग जा रहे हैं देश का पैसा लेकर। प्राइवेट रेलवे स्टेशन प्राइवेट हो जा रहे हैं, हवाई एरोड्राम जो है वो प्राइवेट हो जा रहा है। अब आप बिजली को भी प्राइवेट में दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे झारखंड में बिजली की किल्लत है। एक तरफ भाजपा हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है कि बिजली की क्यों किल्लत है, और दूसरी तरफ अडानी पावर प्लांट वहां लगाया गया है, वो बांग्लादेश को बिजली बेच रही है, लेकिन अपने स्टेट को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 25% बिजली उसको देंगे जिसका कोयला ले रहे हैं, जिसका जहां पॉल्यूशन कर रहे हैं, जहां के लोग बेघर हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं, वहां का पानी का इस्तेमाल हो रहा है, आप उनको नहीं दे रहे हैं। तो क्या आप सरकार चला रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप बहुत विकास कर रहे हैं, यही आपका विकास है कि आप लोगों को उजाड़ रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं आप यहाँ से बिजली बना के विदेश में बेच रहे हैं और अपने राज्य में आप नहीं दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने भी उसी, आपने ये कहा है कि जो आपका ये तर्क है कि आपने भी कुछ ऐसे ही नाम को चुना है क्योंकि आप बीजेपी से ज्यादा इस तर्ज पर डेवलप, इस तर्ज पर आपकी अलायंस इस पर डिलीवर करेगी। भाजपा द्वारा किया जा रहा है और विकास दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती, आपके कहने का यही मुद्दा था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप भी अगर विकास की बात कर रही हैं तो अच्छा है। आज गरीब हमेशा अपने बच्चों को, महुआ जी मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो एज एन आम नागरिक कहूंगा कि चाहे वो सत्ता पार्टी हो, सत्तारूढ़ी पार्टी हो या विपक्ष पार्टी हो, दोनों अगर विकास पर तवज्जो दे तो आम आदमी का उद्धार होगा। लेकिन हाँ, संजू वर्मा जी, थैंक यू। देखिए आनंद जी प्लीज। हाँ, महुआ जी, मैंने आपकी बात सुनी बड़े ध्यान से। आई वांट टू जस्ट आस्क वन क्वेश्चन। आपने 3-4 बार प्राइवेटाइजेशन शब्द बार बार कहा। आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन? महुआ जी, हैज LIC, हैज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बीन प्राइवेटाइज्ड? आप मुझे बताइए, आज देश की जनता जानना चाहती है क्या मोदी सरकार ने LIC का मैंने ये नहीं कहा, आपने गलत सुना। मैंने कहा कि LIC के पैसों को, मैंने LIC को प्राइवेट क्या नहीं कहा, मैंने कहा कि LIC के पैसों को आपने चंद बिजनेसमैन को दिया लोन में। मैंने नहीं, वो LIC उन्होंने कभी LIC के प्राइवेटाइजेशन के नहीं। संजू जी एक मिनट थोड़ा सा, उन्होंने ये कहा कि LIC की जो पूंजी है वो पूंजी 4-5 पूंजीपतियों के हाथ में वो दे दी गई। हाँ जी। ओके महुआ जी, आपने LIC की प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं की, पर आपने ये जरूर कहा कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है मोदी सरकार के तहत। तो आपको एक बात बता दूं, और बड़े पते की बात है, आपको बाकी डिबेट्स में बहुत काम आएगी, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं एक नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी की होने के साथ साथ एक अर्थशास्त्री भी हूं। Privatization is when the government
और मैं भी dilutes सोशलॉजिस्ट हूँ, ownership, मैं भी please अभी चुप हो सोशलॉजिस्ट जाइए, हूँ, मैं सांसद चुप हो जरूर जाइए। हूँ। आराम से, मैंने आराम आपको से। नहीं टोका, चुप हो जाइए। Privatization is when the government dilutes ownership to the tune of 51% or more. Disinvestment or divestment is when the government dilutes ownership to the extent of only 49% or less. So basic difference is in privatization, the government transfers ownership and control. In disinvestment and divestment, the government retains ownership and control. और आज तक सिवाय एयर इंडिया के या इक्का दुक्का जी। कंपनीज के अलावा गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट किया है, अच्छा, प्राइवेटाइजेशन चलिए हम ना डिबेट विषय से डीरेल हो गया। बात I.N.D.I.A की बात थी। तो इस अलायंस की वजह से, इस नाम के चुनने की वजह से क्या बीजेपी को परेशानी हुई है नैरेटिव को गढ़ने में या समझने में, काउंटर करने में? और क्या विपक्ष इसको अप्रोप्रिएट करता रहेगा, भले ही इसको कहा जाए कि आपने मुखौटा बदला है, चेहरा या स्वरूप नहीं बदला? लेडीज, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।